So this is the Thamel market of Kathmandu. आप यहाँ पे लिटरली एक खाली बैग लेके भी आते हो तो आपको सारे माउंटेनियरिंग गियर्स यहाँ पे मिल जाएंगे A to Z. For Mount Everest, for Manaslu, for Annapurna circuit, for Upper Mustang, Lower Mustang, name any circuit, any mountaineering gear, you name it, you will find everything here and the best and the cheapest price. Trust me, you just have to come here and just start your journey from here. That's it. आपको नेपाल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मदन जी हैं, टच द हिमालयस हैं। जो भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स आपको करनी होती है, अगर आपको काठमांडू से पोखरा करनी है, पोखरा से चितवन करनी है, बस टैक्सी फ्लाइट इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये थमेल मार्केट है, आप आइए और यहाँ पे जो भी आपको बुक करवाना है आप करवा सकते हैं। So yeah, now we're up और फिर हम निकल गए पशुपतिनाथ टेम्पल के लिए at 6. काठमांडू के बीचों बीच एक जगह है जहाँ सिर्फ मंदिर नहीं एक अलग ही सुकून मिलता है, पशुपतिनाथ। यहाँ शिव के दर्शन सिर्फ आंखों से नहीं दिल से होते हैं। शिव यहाँ बसते नहीं, ना मूर्ति में ना शब्द में, पर हर सांस में। ये मंदिर नहीं एक अनुभव है और इस अनुभव को महसूस करने के लिए हर रूह यहाँ खींची चली आती है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक आत्मा का सफर है जहाँ बागमती के किनारे जिंदगी और मौत एक ही धुनी में गुनगुनाते हैं, जहाँ हर घंटी के गूंज में, हर जलती चिता के धुएं में एक सच्चाई छुपी है। वक्त सब कुछ ले जाता है पर भक्ति सब कुछ छोड़ जाती है। Hello. The power of Pashupatinath ji. The best part is all animals are welcome. Pashu ka dev, Pashupatinath ji. So yeah, that was my stay in Pashupati Boutique Hotel in Kathmandu, and I recommend this hotel for one and only reason that it is really close to the temple, it is really close to the airport. Airport यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और पशुपतिनाथ टेम्पल यहाँ से 500 मीटर की वॉक पे है। तो हमारे लिए बहुत इजी हो गया था एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचना और यहाँ पहुँच के सुबह सुबह उठ के टेम्पल जल्दी से जाना। I loved every second of that temple. I enjoyed it. Definitely has a lot of energy, a lot of vibrations. It's beautiful. That temple is beautiful. We're waiting for the cab now. Right? Right. I am. You are? तो बेस्ट पार्ट मेरे को जो अभी नेपाल का लगा वो ये है कनेक्टिविटी। फ्लाइट्स बहुत अमेजिंग है। तो काठमांडू से पोखरा की फ्लाइट हमें 3,000 रुपये पड़ी, 3,000 इंडियन INR। People are really nice. People are really beautiful. You know one thing, they don't force you for anything. They are very nice. Their smile says it all that they're so happy to have us here in Nepal. You must visit this country. It is so underrated in terms of people. It is so underrated. I'm in love with this place already. So we are at the domestic airport. I love it. It's different. 1 घंटा है हमें फ्लाई करने में टू पोखरा। वेटिंग फॉर अ टर्न। 1 घंटा पहले आ गए। 1 घंटा पहले आ गए। 1 घंटा यहाँ पर टाइम पास करना है बेसिकली हमें। मेरे साथ करना है वो प्रॉब्लम। टाइम पास हमारे साथ। वो भी ठीक है, कर लेंगे 1 घंटे की बात। This is the stay. It's called Welcome to the Fishtail Lodge in Pokhara. You step down and वो सामने हमारा स्टे है और बीच में बोट है जो आपको लेने आती है। ये बेसिकली it's at the tip of an island. एक आइलैंड है उसकी टिप पे and it looks like a tail of the fish. That's why it's called Fishtail Lodge. I really like how beautifully they've made. There are fishes around. It's beautiful. Look at this place, man. I know. This looks like backwaters of Kerala. Yeah, let's go. Namaste. Thank you so much. How do you say welcome to Nepal in Nepali? स्वागत है आपका।
हिंदी है। So I want to know ये choice किसकी थी? Fish tail. मैंने 2 चॉइसेस शॉर्टलिस्ट की थी, उसमें से तुमने ये चूज करी थी, बट 2 चीजें मैंने ढूंढी थी। डर तो रहा है बोलने में। अगर थोड़ा भी जलवा इधर से उधर हुआ तो जलवे के साथ नीचे। नहीं नीचे नहीं जाएंगे, बोट में ही रहेंगे आप। बोट में आपको आप पे भरोसा, मुझे मुझ पे बहुत भरोसा है। ब्यूटीफुल। This is the Nepalese currency, and yeah, I'm sure you can see why I'm so excited, because they have animals on their currencies. So मेरी जो tagline है One Wild Lens की, from jungle thrills to mountain chills, ये actually इनकी currency पे है. So you see the animals here, from jungle thrills to mountain chills, the Mount Everest. It's beautiful. I just fell in love with their currency. It's beautiful. It's beautiful. अभी 3 दिन से हम काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं, कभी ये टैक्सी, कभी वो टैक्सी, कभी ये फ्लाइट, कभी वो फ्लाइट. We just grew tired of it. तो सोचा हम लोगों ने थोड़ा सा मसाज किया जाए. मेरी बीवी निकल चुकी है, मैं भी बस जा ही रहा हूँ. Turn it off? Why? It's beautiful. Look at this. Said you want to go for couple massage और तो लड़ाई हो जाएगी. मसाज नहीं रहेगा, वो फिर फाइट लगेगी. हाँ, ये बातें नहीं चाहिए हमें. I want to kiss from you. Yes, me too. Thank you so much. Nice, beautiful. So yeah, we just had our massage. Now we're heading to the deck. This is the restaurant. It has a superb view, 360. इधर mountains हैं, इधर lake है, and this is the view from the deck. चलो यार कुछ खाते हैं. See you evening में मिलते हैं. तो आप कह रहे हो कि 30 साल के बाद टेम्परेचर सबसे ज्यादा टेम्परेचर अब वो है हर कंट्री में नहीं, नेपाल नहीं, हर कंट्री में ओवर टेम्परेचर ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है. ज्यादा है. That is where we have to go. I only know the name of one face, which is सिद्धेश्वर. हाँ But ये 4 faces हैं हाँ. शिवा के. हाँ तो शिव जी के जो 4 faces है, उसी का लिंग है वो पशुपतिनाथ. हाँ, तो ये एक तरह का डिपिक्शन है. डिपिक्शन है. तो ये है आयुर्वेदिक मोमो. आयुर्वेदिक मोमो, अश्वगंधा शिलाजीत वाले मोमो होंगे पक्का. शिव का मंदिर. ये मंदिर उन लोगों के लिए है जो भीड़ से नहीं खुद से मिलने आए हैं. यहाँ शिव पूजे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं. हर शंख की ध्वनि में, हर दिए की लौ में और हर ठंडी हवा के झोंके में लगता है मानो जैसे शिव यहीं कहीं आसपास हैं. This is, I think, the world's biggest डमरू ever made. It's beautiful. That is Peace Pagoda. चलो. Hot, 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 hot. बहुत ही खूबसूरत जगह है. डमरू is connected with Lord Shiva. हमारे महादेव, हमारे शिव जी, सबके महादेव, सबके शिव जी actually. I think whenever God is at an elevation, it is a sign that Yeah. I'm looking after you. Yes, As long as you are looking after each other. exactly. बूंदाबांदी शुरू हो गई है. पीस पगोड़ा यानी शांति स्तूपा. ये जगह सिर्फ एक दृश्य नहीं, ये एक साइलेंस है जो दिल तक उतर जाता है. यहाँ ना शोर ना जल्दी, बस एक ठंडी हवा, एक गहरी सांस और एक याद कि असली शांति बाहर नहीं अंदर होती है.
दिस इज द एंट्रेंस टू श्री गुप्तेश्वर महादेव केव एंड यहाँ पे एंट्रेंस से पहले मार्केट्स हैं, ब्यूटीफुल मार्केट्स। सबसे अच्छी बात पूरे नेपाल की जो मेरे को दिखी है, जो मैंने फील करी है, हिंदुस्तान से बहुत डिफरेंट नहीं है। सब कुछ ऐसा लगेगा आप हिंदुस्तान में ही घूम रहे हो, लेकिन क्लेनलीनेस बहुत है। आपको कहीं पे भी पैकेट, चिप्स, प्लास्टिक बॉटल ये सब फेंका हुआ नहीं दिखता है। यहाँ के लोग में सिविक सेंस बहुत अच्छी है। पोखरा स्पेशली तो मेरे को बहुत ही साफ सुथरा लगा। यहाँ पे नहीं लोग फेंकते, उनको अच्छा लगता है अपना सिटी को क्लीन रखना। वे टू द केव, लेट्स गो। एक प्राचीन और पवित्र गुफा जहां प्रकृति ने खुद शिवलिंग का रूप बनाया है। यह गुफा सबसे पहले 16th सेंचुरी में पाई गई थी और तब से ये अस्तित्व बन चुकी है उन लोगों के लिए जो ध्यान, भक्ति और शांति ढूंढने आए हैं। जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हो, ठंडी चट्टानों से गुजरते हो, एक अजीब सी शांति महसूस होती है और ऐसा लगता है जैसे हर बूंद, हर पत्थर शिव के नाम ले रहा हो। दिस इज एक्चुअली द प्रसाद। शिव यहाँ सिर्फ मूर्ति नहीं, एक जीवित शक्ति की तरह महसूस होते हैं और इसी गुफा के पीछे छुपी है देवीज फॉल, एक विजुअल और स्पिरिचुअल जोड़। यह है सारंगकोट, जहां आसमान और हिमालय एक दूसरे को चूमते हैं। सारंगकोट की पहाड़ियों के बीच एक शांत और पवित्र स्थान छुपा है, पंचमुखी गणेश मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक आशीर्वाद है जो प्रकृति के बीच बसा है। ये मंदिर गणेश जी के 5 रूपों को समर्पित है। हर मुख एक अलग शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, बुद्धि, सिद्धि, लक्ष्मी, शक्ति और विनायक। यहाँ आकर लगता है जैसे संकट दूर हो रहे हैं और हर नई शुरुआत गणपति जी के चरणों में आशीर्वाद लेकर शुरू हो रही है। तो बस फिर हम वापस पोखरा आ गए अपना सारंगकोट करके। रात को थोड़ा चिल किया, नाइट लाइफ एंजॉय किया, हल्की फुल्की शॉपिंग करी और एक यहाँ पे कैफे है, मालिन जावा कैफे। आई थिंक आई फेल इन लव विद दिस कैफे। आई हैवंट सीन अ कैफे लाइक दिस इन इंडिया। मतलब इफ यू आर इन लव विद मोटर बाइक्स एंड कॉफी एट द सेम टाइम, दिस इज वन प्लेस दैट यू शुड ट्राई। यू कैन सी व्हाई आई एम सेइंग दैट। आराम से Mama. This is cool. खून बड़ी मांग। मुझे लगा It's like खून बड़ी मांग, खून बड़ी मांग, No. खून बड़ी मांग पार्ट 2। Shut up. उसमें वो अपनी बीवी को मगरमच्छ को खिला देता है। अरे मगरमच्छ नहीं, मतलब Here is our stay. Fish lodge. Fish lodge. ऐसा लग रहा है हम वापस से स्टोन एज में आ गए। Oh my God, this is scary also. So, आज हम निकल रहे हैं हम फिश टेल से। And I also had a very lovely chat with these two people. मेरा नाम विष्णु। विष्णु जी, आपको क्या दिखता है? मेरे को सब कुछ दिखता सब कुछ दिखता है। ये हमारे 360 व्यू हैं। Now we're checking out from Fishtail and our next destination is. Let's be a surprise. Let it be a surprise. Yeah, it is 25 kilometers away from this place. It is 25 kilometers from this place Trekking sandals. with my some trekking shoes and her trekking sandals. आ जाइए, पकड़ लीजिए हाथ अच्छे से, पकड़ लीजिए। Fine. आइए प्लीज। Yes. We have reached this point. यहाँ तक गाड़ी जाती है बेसिकली और इसके ऊपर ट्रैक है जहाँ पे हमारा स्टे है। तो 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है और यहाँ से अगर आपके पास पिट्ठू बैग है लाइक दिस देन इज फाइन, अदरवाइज यहाँ से भी आपको एक होटल लेना पड़ेगा। हु इज गोना चार्ज यू अबाउट 1000 NPR, क्योंकि जितने भी होटल्स हैं वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की ट्रैक के बाद हैं। चलो जी, द ट्रैक स्टार्ट्स नाउ। Hey you! मेरा छोटा सा बच्चा क्या नशा हो? यू चाट दूंगा पूरा।
टू सा बच्चा, इतना प्यारा सा बच्चा है। बैग में से चलते हैं। आज इंडिया चल। So guys, this is a good 45-minute steep trek. It is not like कि बीच में आके सीधा हो गया, फ्री हो गया, नहीं, एकदम स्टीप है। ये यहाँ पे जो लॉजेस हैं उनके नाम हैं, so you can always check. It's a good cardio because पता है आप ऐसे ट्रिप्स में वर्कआउट नहीं कर सकते, and I love to work out, but at least legs workout ही हो गया। Let's see if all this climb is worth it. Worth it तो होगा definitely. Finally, our way to our hotel, which is Gandruk Eco Village. मेहनती इंसान, खूब मेहनत की इन्होंने। And this is our room like, and this is the view like. Nice. तो ये था हमारा सफ़र गांधरुक पहुंचने का। क्या नज़ारा है यार, क्या लोग हैं, क्या कंट्री है नेपाल। It needs more promotion is what I feel. I mean, they have all the activities. It is a hub for all the adventure enthusiasts, wildlife, mountains, and it is famous for two best mountains, Annapurna and Mount Everest. It takes my heart away.